So, good afternoon. First thing, we will scan the FNO market. Scanner is needed, but I don't advise any scanner to go through. But don't buy the scanner what I am showing over here. It is what I wanted to say. It is very bad scanner, but still we buy, still we have it. So, okay. The first thing is price scanner is there, relative strength, weekly. Relative strength is different and relative strength index is different. Okay, when you see the relative strength, the relative strength indicator basically shows outperformed and underperformed benchmark like Nifty and Sensex. So there are 21 in which strong outperforming benchmark by 20 for 21 weeks, that is 244. Relative strength above the zero benchmark, and this is where you need to this is where you need to go. This is where relative strength going above zero benchmark. So the stocks which were not performing, now they are heading towards the performance. This is an idea. In this you can see boldly, you can see ITC is there, Railtel is there, Canara HSBC Life Insurance is there, and Gujarat State Fertilizer Chemicals is there. So all these are they just going above zero benchmark. That means they are now heading upside. Okay, ask me later. This software is worst. Okay, Reliance Power. So let's begin with one or two. I will explain one or two. And what I will do is, as I'm an FNO trader, I'll go to the FNO and go and hit the apply. And now I know K Fintech and Kainas, all these are performing higher. One of the thing is HDFC Asset Management. We will go with that. We will see the chart. Okay, we saw the chart and we saw the weekly. It is probably going up to 2854 in case if it has to go. So the RSI, the strength of relative is going above the zero. So it is heading towards 20. So the strength is good and this is good. So we will look into charting now. So HDFC Asset AMC. So as it is, there is one more thing I really want you to go through that fundamentals market. Just go through this market. Basically, the moment you come, I'm not promoting any this thing. You will come to know 50 DMA and 200 DMA where they are. The price is exactly at the in between both. Okay, the price is exactly at in between both. So what you need to do? You either need a decision on daily, either it breaks out of 200 or it comes below 200, making one more low. How it is going to happen? That you need to check it on the live market. But what I'm going to show you is I'm going to show you some charting system that I follow. This is, again, I told you, this is what I follow. So the breakout from the fractal this thing has already taken place, and this is a strong bullish breakout. This is a strong bullish breakout. Break above this, it is likely to head towards this resistance area 2800. Okay, so it is 2610. So now the second question comes, how do we trade it? So when we want to go with the trading decision, we need to have some certain degree of accuracy. When we come to 15 minutes, what we see is we see in a consolidation phase here. This is getting consolidated here. Okay. We want the price to come below and make a small correction, and we want a thin small area, very small area of congested area before it try to move up. Okay,
So we will look into trading view. Now that is chart IQ, this is trading view. ट्रेडिंग व्यू में क्या देखना है आपको? ट्रेडिंग व्यू में देखना है जी, मुझे ये देखना है जी कि ये करता कैसा है। तो यहाँ पर फर्स्ट आपका आती है 25 का निकाल दो, सितंबर का डाल दो, और आपको यहाँ फर्स्ट आती है ओपन इंटरेस्ट का। सितंबर अगस्त का तो खत्म हो गया, सितंबर का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा कॉल बेचे गए हैं, सो इट विल एक्ट एज एन अ सपोर्ट। पुट कम है तो इट विल एक्ट एज एन अ सपोर्ट। तो कॉल ज़्यादा बेचे गए तो फिर एट दिस प्राइस इट इज़ गोइंग टू मेक एन सपोर्ट ओवर हियर। ओके, यहाँ पे खुद दिखाई दे रहा है सपोर्ट एज दिस थिंग। तो ये हो गई एक ओपन इंटरेस्ट असेसमेंट। तो दूसरा असेसमेंट क्या होना चाहिए? दूसरा असेसमेंट आपका सिंपल है, मैं बोलता हूँ डेली पे चलो। ठीक है, माना कि आपको अच्छा ये डेली पे दूसरा कैंडल नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जस्ट लेट मी सी, लेट मी गो टू द डेली। ओके ओके, ये जो है दिस डेटा इज बेसिकली मॉक डेटा है, एक सिंगल बार है यहाँ पे। ओके, मॉक डे का डेटा वहाँ पे मिलता है, इट हैपन्स देयर इज अ मॉक डे एंड दैट डेटा कम्स। फर्स्ट अगर मैं आपको सिखाना है कि भाई आपको अच्छे तरीके से ट्रेड करनी है, तो मैं पहला सुपर ट्रेंड लगाता हूँ। सुपर ट्रेंड लगाता हूँ और यहाँ MACD लगा देता हूँ। MACD नीचे है, सुपर ट्रेंड प्राइस सुपर ट्रेंड के नीचे है। MACD भी नीचे है, जीरो लाइन से प्राइस सुपर ट्रेंड। दूसरा मैं चीज़ लगाऊंगा यहाँ पे, मैं सीधा जाऊंगा, मैं वॉल्यूम कैंडल पे लगाऊंगा। जब आप वॉल्यूम कैंडल देखोगे और जब आप 45 मिनट्स में वॉल्यूम कैंडल के पास जाओगे, तो आपको एक डेटा मिलेगी कि भाई अब आखिर हो क्या रही है। सुपर ट्रेंड मैंने 10/3 लगाया, जो कंपनी का है वही लगाया, ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं खराब करने का। सुपर ट्रेंड का कैसा लगा, कित कौन सा वाला रखूँ, ये वाला रखूँ, वो वाला रखूँ, नहीं, कुछ नहीं करने का। जो कंपनी का है वही है। ये थोड़ा सा इसे पुल बैक होने दो, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, थोड़ा सा पुल बैक होने दो। अच्छा, ये रिजेक्शन वैलिड है कि इनवैलिड है? द आंसर इज इट इज जस्ट अ टेम्पररी पॉज। इतने वॉल्यूम, बड़े बड़े वॉल्यूम कैंडल्स बने हैं यहाँ पे, इतना बड़ा वॉल्यूम कैंडल बना, जैसे ही ये इग्नोर हुआ, ये स्मॉल वॉल्यूम कैंडल से इग्नोर होती है हमेशा, ये ध्यान में रखना। जितने बड़े कैंडल्स बनते हैं वो छोटे छोटे कैंडल से इग्नोर होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज द वॉल्यूम इज इनसाइड दैट कैंडल, सो यू कैन कम टू 15 मिनट्स। आप चाहे तो 15 मिनट्स में इसके नीचे जैसे ही आता है, बहुत से लोग शॉर्ट सेल कर देते हैं। आई डोंट एडवाइज टू गो फॉर द शॉर्ट सेल। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे आके, यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम वाला कैंडल बनना चाहिए, बड़ा सा वॉल्यूम कैंडल बनना चाहिए, और उसके नीचे आके एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, वहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए। देखो ये बड़ा कैंडल बना, बाद में कंसोलिडेट किया, बाद में ब्रेकआउट हुआ, बड़ा कैंडल बना, छोटे कैंडल में कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट हुआ, छोटे कैंडल में ब्रेकआउट हुआ, फिर बाद में बड़ा कैंडल बना, फिर कंसोलिडेशन हुआ। ये जो है, ये वॉल्यूम जो है, इट हेल्प्स यू टू प्रिवेंट अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स। आप इसको चाहे तो 1 आवर में ट्रेड कर सकते हो, यू कैन ट्रेड इट ऑन 1 आवर। यूजुअली जो जो प्रीवियस सपोर्ट एरिया होते हैं, जो कंसोलिडेशन फेज होते हैं, तो यहाँ पे ये वाला कंसोलिडेशन फेज है, यहीं पे कहीं इसकी बाउंस होने की प्रोबेबिलिटीज़, हम प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी बनती है। दूसरा है इसका, जहाँ वॉल्यूम देखो वॉल्यूम पे ही काम करे। देखो, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, जैसे आपको गाड़ी चलाने का सीखते वक्त आपको लगता है कि भाई मैं कैसे गाड़ी चलाऊं, कुछ लोग एक्सीलेटर पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, कुछ लोग गियर पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, कुछ लोग स्पीड पे कंसंट्रेट करते हैं, और कुछ लोग ब्रेक पे कंसंट्रेट करते हैं। तो हर आदमी अपना अपना हिसाब से कंसंट्रेट करता है अपने ही चीज़ों को देखने के लिए। मैं यहाँ पे आपको ट्रेनिंग पे, जो ट्रेनिंग सेशन में जो आप बैठोगे,
तो एजुकेशन कोर्स में मैं बता सकता हूँ कि आपको क्या पसंद है, और उसी पसंद के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई साहब आप ये कीजिए और इसमें ये हो जाएगा, आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। हम्म? The core understanding has to come in you before you even say that you want to become a trader in FNO. अगर FNO का ट्रेडर बनना है तो कोर अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए ही चाहिए। विदाउट दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्या हम इसे वीकली में देख सकते हैं? एक सवाल ऐसे ही किसी ने कहा, साहब हमें वीकली का बता दो साहब, हम लोग वीकली में ही बहुत पैसा लगाना चाहते हैं। तो वीकली में भी है, आपको सुपर ट्रेंड में वीकली के लिए इसे 2 बनाना पड़ता है। यू हैव टू मेक इट। तो वीकली में है, इट इज़ देयर इन द वीकली। वीकली में देखिए ये आया इतना छोटा सा वॉल्यूम पे, फिर ऐसे ब्रेक किया तो बड़ा वॉल्यूम निकला। अभी ये 1 2 3 का तीनों का वॉल्यूम मिला के इसमें एक ही में है। दिस वन बार इटसेल्फ हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ ऑल दिस 3। तो आपको क्या लगता है यहाँ तक, यहाँ इसकी एक रेजिस्टेंस एस्टेब्लिश्ड है तो यहाँ तक नहीं जाएगी क्या? जा सकती है। लिमिटेशन है आपकी कि आप यहाँ पे अपना स्टॉप रखोगे और यहाँ पे आपकी एंट्री रहेगी। वो लिमिटेशन पे काम करना पड़ेगा। यू हैव टू लिमिट योर सेल्फ फ्रॉम गोइंग रॉन्ग। तो ये वीकली बार का जो लो है, दैट लो बिकम्स योर स्टॉप। दैट लो बिकम्स, जब तक आप कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपकी इंप्रूव नहीं हो जाती तब तक आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है भाई। आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, इसके पिछवाड़े का जो नहीं, तो आपका रिस्क है 153 पॉइंट्स, आपका रिवार्ड आपको 153 पॉइंट्स चाहिए। 1 वीक का 153 पॉइंट्स इक्विटी में ट्रेड के लिए बहुत अच्छा है। जब आप इक्वल हाई पे जाते हो 1:1 मिल जाता है। मान लेते हैं कि आपने 25,000 भी लगाया है यार, 10 क्वांटिटी भी लगाया है, फिर भी आपको 2-2,500 रुपये तो दे के जाएगा। 2,100 2,200 रुपये दे के जाएगा। पैसा ऐसे ही बनता है रे भाई। अब इससे ज़्यादा हम आप क्या बोले, पैसे कैसे बनता है? ठीक है, ये हो गई। अच्छा, दूसरा देखेंगे के फिनटेक टेक्नोलॉजी। के फिनटेक टेक्नोलॉजी का हम डायरेक्टली इसी में जा लेते हैं। के फिनटेक, यहाँ पे देखिए अभी ये इसमें किसमें सुपर ट्रेंड अभी बाय सेटअप नहीं दिया वीकली में, लेकिन वीकली में ये अच्छा खासा कैंडल्स बनाया, लेकिन ये रिजेक्शन कैंडल है। दिस इज अ रिजेक्शन कैंडल। बाद में एक ही अभी ये इसके ऊपर क्लोज हुआ है। सो हम लोग क्या बोलते हैं यार, इसको लेट इट कूल डाउन, लेट इट कूल डाउन। अभी ये न्यूज़ में भी बहुत आ रहा है, ये देखो दिस इज अ मेजर मेजर इंडिकेशन। अगर आप इसे ऐसे देखोगे ना, आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसे देखोगे मालूम पड़ेगा यार, यहाँ पे तो पैसे, यहाँ पे तो पैसा तो यहीं पे लगा हुआ है। आप बोलोगे यार पैसा है यहाँ पे, जितना पैसा लगा है इसके लो तो जा ही नहीं सकता वो। अगर आपने इसका पुल बैक वेट किया होता यहाँ पे कहीं, तो आपको ये तो 3-4% तो आराम से मिल गया होता। 4-5-6% तो आराम से मिलता। लाख रुपए भी लगाएंगे तो 5-6 हज़ार रुपये 10-10 8-10 दिन में मिल ही जाता है यार। इसका 1 आवर के स्टोरी में जाओगे तो 1 आवर पे टर्न अराउंड में जो होगा वो आपको मालूम पड़ेगा। 1 आवर पे टर्न अराउंड, लेकिन 1 आवर बहुत ये होती है, गंदी होती है। तो 15-20 मिनट्स में आप टर्न अराउंड देख सकते हो। यू कैन लर्न। अगर आपको सुपर ट्रेंड में, सर मेरे को सुपर ट्रेंड नहीं चाहिए, मुझे दूसरा इंडिकेटर बताओ, तो दूसरा इंडिकेटर बताएंगे। दूसरा इंडिकेटर है, चलो भाई आप अगर मूविंग एवरेज क्रॉस देखते हो तो मूविंग एवरेज क्रॉस में देखो। जब भी ये 15 मिनट में, जब भी ये प्राइस ऊपर क्लोज होती है, वॉल्यूम के साथ क्लोज हो रही है, वॉल्यूम के साथ क्लोज हुई, एक 2 से 3% मिला, पैसा बना ले। हाँ, पैसा बना लिया। या 45 मिनट्स में जाओ, 45 मिनट्स में भी ट्रेड करो।
आपको एक चीज़ ज़रूरी है सोचने की कि आप कौन से इसमें कंफर्टेबल हो, डेली पे हो, 45 मिनट्स में हो। कुछ लोग साहब मैं 2 मिनट में करना चाहता हूँ, तो कर ले भाई, तुम्हारी मर्जी। ये इतना बड़ा वॉल्यूम आया, लेकिन ये 9 और 26 पीरियड के ऊपर ही क्लोज हुआ। जैसे ये ब्रेक होती है, आपका स्टॉप ये है और ये ऊपर गया, परसेंटेज कितना मिलता है 2 मिनट में? देखो आपके सामने मैं दिखा देता हूँ परसेंटेज कितनी मिलती है। 1.5% तो देखो भाई, लाख रुपए लगाओगे 1500 रुपये तो लेके जाओगे घर। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई इतना ही मिलेगा, लेकिन हर सेटअप का एक कंडीशन होता है। जिस सेटअप को आप सीखते हो तो उस सेटअप से आप पैसा बनाते हो। Can we understand this is about to happen? Yeah, the answer is yes. You can understand this is about to happen. आपको सिर्फ 1 आवर में जाना है, सिर्फ 1 आवर में जाना है। और ये बड़ा कैंडल बनाना है, ये यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कहीं 1 आवर में जाना है। 1 आवर में क्या हो रहा है, छोटे छोटे दाने बन रहे हैं। यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम ड्राइड आउट है, दाने दाने बन रहे हैं, दाने। या बुलिश इंगल्फिंग हुआ तो आपका स्टॉप यहाँ रहेगा, आप रिस्क रेस को बड़ा बल्ले बल्ले करो। कौन रोका है आपको? कम से कम 10% 12% आराम से बना लेते हैं। अरे यार इजी है मार्केट, लेकिन कमज़ोरी आपके दिमाग में है कि आप इसे सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पा रहे हो। बस आपका दिमाग को कोई ट्रेन करने वाला नहीं है। यू कैन ज्वाइन द ट्रेनिंग कोर्स। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।